I am Pramod sir of your maths teacher. Welcome to everybody today's online class. Student, in my previous lecture, I have told you about the topic angles of chapter number 5th. So, student, in today's lecture, I will discuss about the second topic, that is the lines. So, student, we are going to tell you about the lines. Student, before knowing the lines, we should know about the point. लाइन को जानने से पहले हमको पॉइंट जानना जरूरी होता है स्टूडेंट. सो फर्स्टली वी will tell you about the points क्या होता है स्टूडेंट? a point determines a location. And point has no length, breadth and thickness also. Student, it is denoted by the single English, by the single capital letter of English alphabet. Student, this is the definition of the points. After point, we come to your topics, lines. So student, firstly try to understand about the point. A point determines a location and point has no length, no breadth and thickness. पॉइंट में ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होती है और ना ही थिकनेस होती है, मोटाई. इट इज डिनोटेड बाय द सिंगल कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट के सिंगल कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है. स्टूडेंट, सपोज दैट आई एम टेकिंग एग्जांपल हियर. वी नीड टू plant the trees on this plane. Suppose that there are different plant, rows. Suppose that we need to plant rose tree here on this point, and next is we need to plant here on, it means on this point, and next plant we need to plant it here. Next tree is planted to here, it means on this point. So if we denote the name of the point by A, B and C,
Suppose, student, you have three different plant: mango plant, orange plant, and rose plant. And if we say to you that plant the mango trees at the point A, मैं आपसे कहूं कि मैंगो के प्लांट को पॉइंट ए पर प्लांट करना है, देन स्टूडेंट यू कांट प्लांट मैंगो ट्री ऑन द पॉइंट बी और सी. आप मैंगो के प्लांट को बी और सी पर आप प्लांट नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हैं. यू कांट प्लांट. You will plant the mango tree at the point A. It means this point locate the position of mango tree. मैंगो के ट्री का लोकेशन शो कर रहा है. अब we can't plant mango tree at the point C or B. So, student, a point determines the location of anything, any object. किसी चीज की लोकेशन को डिटरमाइंस करता है, सुनिश्चित करता है. सो एंड पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस. पॉइंट में ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होती है, और ना ही थिकनेस होती है. इट मीन्स पॉइंट ऑफ द पेंसिल, व्हेन यू मार्क विद द पेंसिल ऑन पेपर, दैट इज द पॉइंट. This is point, student. When with pencil you mark at your paper, on your paper, that is the point. This point, this is point, this is point, this is point. But point has no length, no breadth, and no thickness. So, student, I hope you have understood about the point. So, come to your topics, that is lines. So, student, what is line? Student, in class 6, you have already studied about the lines. Lines. What is lines, student? Line is a collection of points. इसीलिए मैंने आपको पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया आपसे. पॉइंट अब आप जान गए हैं. सो लाइन की डेफिनेशन देखिए. लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट which can go in both direction endlessly, and it has no definite length, and line is denoted by the single small letter of English alphabet or by the two capital letter of English alphabet. So, student, we can write the definition of the lines. Line is a collection of points. It can go in both direction endlessly, and it has no definite length,
length. It is denoted by the single small letter of English alphabet or by two capital letter of English alphabet. This is the definition of the lines. And the symbol for lines, student, is this. This is the symbol. This is the symbol of lines. Lines का ये symbol मेरा है. So, student, for example, by the example, we understand here, line is a collection of points. Suppose that firstly we are drawing lines. पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं ये बना कैसे. Look here. Point A and point B. This is the line AB. Line AB. And it is written like this. We read this line AB. इसको हम रीड कैसे करते हैं? लाइन AB. अब देखिए इंग्लिश टू कैपिटल लेटर से हम इस लाइन के नेम को राइट किए हैं, लाइन को डिनोट किए हैं, लाइन ए बी. इफ यू राइट ओनली ए बी, इट इज रॉन्ग. व्हेन यू मेक द सिंबल above the AB like this, then it is called लाइन ए बी. ये लाइन ए बी है, ये लाइन का सिंबल है. इट मीन्स ए बी जो है दैट इज लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट, नॉट रे. सो स्टूडेंट, इट इज लाइन. एंड इट इज ऑल्सो, इफ यू डोंट वांट टू शो बाय द टू कैपिटल लेटर ऑफ दिस लाइन, देन यू कैन denote by the single capital letter L. Now we can say that this is line L. हम कह सकते हैं कि ये लाइन कौन सी है? L है, L line. Now come to your definition. Line is a collection of points. ये लाइन बना कैसे है? आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊं, ये लाइन इसी तरीके से नहीं बन गई है. इस लाइन पर बहुत ढेर सारे डॉट्स हैं, बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं, लाइक दिस. देखिए पॉइंट, एंड यू नो अबाउट द पॉइंट. पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस. सो मेनी पॉइंट्स आर ऑन दिस लाइन, एंड व्हेन वी ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स टुगेदर, वी गेट द लाइन्स. जब हम इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, देन वी गेट द लाइन. सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर. दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज, ये सभी पॉइंट हैं. आप देखिए मैं सेपरेट बना रहा हूं आपको, ये सभी पॉइंट हैं. एंड व्हेन वी ज्वाइन
all these points together, we get the line. अब देखिए सभी पॉइंट, इसीलिए कहते हैं लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। बहुत ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है तो एक लाइन बनती है। एंड एरो इज शोइंग, arrow of this line is showing that this line can move in both direction। दोनों डायरेक्शन में ये लाइन जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, लेफ्ट भी एंड राइट भी। एंड इट हैज नो डेफिनिट लेंथ, इसकी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होती है, निश्चित लेंथ नहीं होती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, नो। It can move in both direction endlessly and it has no definite length, and it is denoted by single letter, small single letter, or by the 2 capital English alphabet letter से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड द सिंबल ऑफ द लाइन इज दिस। सिंबल है कहीं भी अगर anywhere if you are seeing this symbol then it means that is the line। ऐसे अगर कहीं राइट है CD और इसके एबव इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, then you will read it line CD, line CD। So student, I hope you have understood about the line। So come to the next topic, that is ray। ray, what is ray? रे मीन्स आप समझते हैं किरण, और किरण का फिगर कैसा होता है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट। दिस इज रे, दिस इज रे, आप जानते हैं इसको। सो how can we define it? Ray, रे क्या होता है स्टूडेंट? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। आप देखिए लाइन के बारे में आप जान चुके हैं। सो रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन which has one end point and can go in one direction endlessly, one direction endlessly। It has no definite length, also like line, and it is denoted by the two capital English alphabet letters। And symbol of the line is
symbol of line is this. ये symbol ray, sorry student, of symbol of ray is this. Now student, I am drawing the figure of ray. This is ray. This is ray student. ये ray and it has one. अभी आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, लाइन टू लाइन डेफिनेशन को रीड करके फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूं. रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन. सो फर्स्टली स्टूडेंट, फर्स्टली वी ड्रॉ द लाइन. दिस इज माई लाइन. इट इज कह रहा है रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन. अब इसको आप कट कर दीजिए. अभी देखिए मैं इसको यहां से, सपोज दैट मैं यहां से इसको कट कर रहा हूं. सो वी गेट अ पॉइंट हियर. सपोज दैट दिस इज ए पॉइंट एंड हियर वी कैन राइट पॉइंट बी फॉर डिनोटिंग. मैंने कट करके इस ए बी को अगर निकालूं, सो वी गेट दिस शेप, दिस फिगर. ए कट करके निकालिए. ये पूरी लाइन है, इसमें से एक पार्ट को कट करके मैंने निकाला. ए एंड दिस इज बी. दिस इज रे स्टूडेंट. यही रे, इसी को रे कहते हैं. इसलिए कह रहे हैं रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन. इट विच हैज वन एंड पॉइंट. एक तो एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है. अब इसके लेफ्ट में ये मूव नहीं कर सकता, not extend to the left and can go in one direction endlessly. और एक डायरेक्शन में आपका एरो लगा हुआ है, क्योंकि पार्ट तो यहीं से आप कट किए हैं लाइन को. तो वो इन वन डायरेक्शन इट कैन मूव, इट कैन गो एंडलेसली. इट हैज नो डेफिनिट लेंथ. निश्चित लेंथ कहां से हो सकती है? अगर ये राइट डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जा सकती है, तो फिर डेफिनिट लेंथ होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. इट हैज नो डेफिनिट लेंथ एंड इट हैज डिनोटेड बाय द टू कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. आप देखिए, हाउ कैन वी राइट बाय द सिंबल ऑफ दिस रे लाइक दिस स्टूडेंट. ए बी, वी रीड इट रे ए बी. हम इसको रीड क्या करेंगे? रे ए बी. एनीवेयर इफ यू आर सीइंग दिस सिंबल, देन यू विल रीड इट रे. कहीं भी आपको ये सिंबल अगर दिखता है तो आप इसे रीड क्या करेंगे? रे रीड करेंगे स्टूडेंट. सो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द रे. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. line segment. Student, line segment is a part of line which has two end point, ends point and definite length also.
Student, line segment also line part of line. Suppose that firstly we draw the line. एग्जाम्पल देखिए, पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फ्रॉम दिस लाइन वी कट द लाइन सेगमेंट. हम लाइन सेगमेंट कट करेंगे. लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन. मैं यहां से कट किया और मैं यहां से कट किया और कट करके इसको मैं टेक आउट कर रहा हूं, निकाल रहा हूं. आप देखिए, दिस इज पार्ट, यही पार्ट है एंड इट इज द पॉइंट. इट इज द पॉइंट सपोज दैट ए एंड बी. ए बी पार्ट को मैंने लाइन एल में से, सपोज द नेम ऑफ दिस लाइन इज एल, लाइन एल से ए बी पार्ट मैंने कट करके निकाला. इट इज लाइन सेगमेंट स्टूडेंट and it is the definite length. Why? Because it has two end point. इसके दो एंड पॉइंट हैं, सो लेंथ तो डेफिनेट होगी. 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एनी कोई भी हो सकती है इसकी लेंथ. सो स्टूडेंट, द सिंबल ऑफ द लाइन सेगमेंट, symbol of line segment is this only. This is the symbol. You can show this line right like this, and you will read it line segment AB. इसको आप रीड क्या करेंगे? line segment AB. So student, this is the line segment. I hope you have understood about the line segment. So come to the next point, that is the intersecting line. Intersecting line. Two lines are said to be intersecting line if they meet to each other at a common point. दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी अगर वे एक दूसरे से किसी एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिले. लाइक दिस इज अ लाइन स्टूडेंट, and this is also a line, and you are seeing here that both lines meet to each other at this point. Suppose that the name of this point is O, and meeting point of the intersecting line is called intersection point. ये क्या है? इस पॉइंट का नेम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट. दोनों लाइनें एक दूसरे से जिस कॉमन पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन
point. So student, this is the intersecting line. Now come to the next point, that is the student parallel line. Parallel line. Parallel line. Two lines, student, see the definition of the parallel line. Two lines are said to be parallel if they don't meet to each other anywhere in plane. Example, this is the surface of the board is plane. Student, I am drawing here the parallel line. This is a line and this is also a line. Both are parallel. हमने कहा two lines are said to be parallel if they don't meet to each other anywhere in the plane. अगर प्लेन में कोई भी दो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं और वे एक दूसरे से कहीं भी मिल नहीं रही हैं, तो वे लाइन आपस में पैरेलल लाइन कहलाएंगी. There are some conditions also of the parallel line, but in next class I will discuss the condition. But something we want to tell you here, student, the distance between the parallel line anywhere should be equal. ये डिस्टेंस जो होती है ये इक्वल होनी चाहिए. अभी आप कहेंगे सर दिस इज लाइन एंड दिस इज आल्सो लाइन, बोथ आर पैरेलल? नो, बिकॉज अगर हम इनको फॉरवर्ड करेंगे या बैकवर्ड करेंगे, आगे और पीछे अगर इनको हम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये आकर के कहीं न कहीं आपस में मिलेंगे. ये दोनों लाइन आकर के आपस में मिलेंगे. सो दिस टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल एंड दिस इज, अगर इनको आप कितना भी आगे और पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप करेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं. व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स एनीवेयर आर सेम. सभी जगह इनकी डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो ये इनको आगे और पीछे आप करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं. सो these two lines are said to be the parallel line and these two lines are not parallel line. So student, I hope you have understood about the parallel line. So student, in my next video I will discuss you the next topic. So thank you student, thank you very much.